السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ملٹیپل ایشوز پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم حکومتی کارکردگی پہ بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس طرح سے گزشتہ حکومتوں سے مختلف ہے، یا اگر بہتر ہے تو کس طرح سے بہتر ہے، کہاں پر بہتری کی گنجائش ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 روز قبل جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس پر عوام خاصی تنقید کر رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ، اور یہ 25 روپے 58 پیسے کا ایک دم جمپ ہے یہ، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ پیٹرول بم جو عوام پر گرایا ہے، یہ کل کو پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو کہتی تھی جی ظلم ہو رہا ہے عوام پر، اور اب یہ ظلم خود کر رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن نثار صاحب نے۔ ان سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن نثار صاحب نے۔ حسن نثار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہے۔ سر، گفتگو کا آغاز اسی سوال سے کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ حکومتوں سے کتنی مختلف ہے؟ بھائی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے ایک بڑے انٹیلیجنٹ اور تیز ترار ان کے منسٹر ہیں اور واقعی ذہین ہیں، فواد چودھری۔ وہ اس پہ تبصرہ کر چکے ہیں۔ خود پرائم منسٹر 6 مہینے کا وقت دے کے تو آگے ورنہ لگا کے آپ کے سوال کا جواب ان ایڈوانس دے چکے ہیں، تو وائی آر یو bothering me؟ لیکن حسن نثار صاحب، جو آپ کی رائے ہے وہ یقیناً آپ کا جو انڈیپینڈنٹ انالیسس ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ فواد چودھری صاحب کے بارے میں تو کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا ہو کہ اس موقع پر یہ سب کچھ کہیں، یا ان کی کوئی اپنی اندرونی مخالفت ہو کسی منسٹر کے ساتھ، یا کوئی ایسی بات ہو جس پہ ناراضگی ہو تو انہوں نے یہ سب کہہ دیا۔ نہیں، انہوں نے تو کسی انڈیویجول کے بارے میں اگر بات کی بھی ہے تو بنیادی طور پہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹوٹل پرفارمنس کے بارے میں بات کی ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ فواد چودھری صاحب نے منسٹر ہیں، ذہین آدمی ہیں، اور انہوں نے ساری بات بتا دی، کھول کے سامنے رکھ دی کہ کیا چل رہا ہے۔ یہ جو ایشوز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یہ فیس کر رہی ہے، اس کی وجوہات صرف آپ کی نظر میں یہ اندرونی اختلافات ہیں جن کا ابھی فواد چودھری صاحب نے اپنے انٹرویو میں ذکر کیا، یا جو اپوزیشن کہتی رہتی ہے جی انکمپیٹنس ہے، انکمپیٹنس ایشو ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ابھی مزید وقت اور دے دیا جائے تاکہ کچھ مزید وقت گزر جائے اور پھر ہم پوچھیں کہ ہاں جی اب بھی بتا دیں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جہاں پر یہ ایشوز ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے پاس اپنا ایک چیز ہے کہنے کو کہ جی دیکھیں، ہم نے جو یہ ابھی شوگر انکوائری رپورٹ پبلک کی، یہ طیارہ حادثہ رپورٹ ہم نے پبلک کی ہے، یہ سب پہلے نہیں ہوا ہے، تو ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اٹ از اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس۔ وہ جو احمد فراز کا سنا ہوگا آپ نے، غم دنیا میں غم یار بھی شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں، یاد ہے شعر؟ وہ یہ جی بھی بالکل۔ بہت سی شرابیں شرابوں میں ملی ہوئی ہیں، کاکٹیل تیار ہوئی ہے، مکسچر ہے، یہ بلینڈ ہے، اس میں نہ تجربہ کاری بھی ہے، اس میں لیک آف ہوم ورک، عدم تیاری کہہ لیں آپ اس کو۔ نہ تجربہ کاری اپنی جگہ بہت بڑا عذاب ہے، عدم تیاری ایک تو آپ کو پتا کچھ نہیں کام کا، دوسرے آپ نے ہوم ورک بھی کوئی نہیں کیا۔ تو اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ پارٹلی وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نتائج دیکھ کے اخذ کرتے ہو نا، بیکورڈ جاتے ہو جی تو پتہ لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اس میں نااہلی اور ان نااہلیوں کے اعترافات بھی ہوئے ہیں۔ مطلب وہ کیا ٹاسک دیا تھا اسد عمر صاحب کو، اس کے بعد ان کا ریموول کیا ہے، اعلان ہے کہ بھئی یہ بندہ اس کام کے قابل نہیں تھا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ اپنی جگہ پہ وہ قابل ہو نہ ہو، وہ تجربہ کار ہو نہ ہو، یہ سیکنڈری ہے۔ حکمرانی کے لیے مردم شناسی بہت ضروری ہے۔ جلال الدین محمد اکبر چٹا ان پڑھ تھا۔ ہمایوں جب فرار ہوا یا جلا وطن ہوا، ایران چلا گیا، تو بھائیوں کے پاس رک گیا افغانستان میں، اکبر بچہ تھا، اس کو کم بختوں نے، اس کے چچاؤں نے پڑھایا بھی نہیں۔ اچھا، وہ بیچارہ انگوٹھا چھاپ تھا،
जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे दुनिया महाबली और अकबर द ग्रेट और मुगल आजम कहती है, वो अनपढ़ था। अच्छा, जब उसने टेक ओवर किया तो उसको कोई तजर्बा नहीं था, ही वॉज वेरी यंग। बैरम खान की जब उसने छुट्टी कराई है और अनान इक़्तिदार उसने खुद संभाली है, तो ही वॉज एक्सट्रीमली यंग। उसका कमाल क्या है, उसकी अचीवमेंट क्या है? वो थी मर्दम शनासी। पूरे आप सब कॉन्टिनेंट की तारीख अशोका से शुरू हो जाए, सलातीन दिल्ली तक आए, उसके बाद मुगल्स का जो पीरियड है उसमें देखें आप, तो उनमें जत्था जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा इज्जत किया जाता है और सबसे ज्यादा चाहा जाता है, सबसे ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है, वो है अकबर के 9 रतन। रतन कहते हैं मोती को। 9 पर्ल्स ऑफ जलालुद्दीन अकबर, जिन्होंने, ये वो 9 बंदे थे कैबिनेट में। बड़े सगीर का जरा साइज सोचें, सर घूम जाता है। पाकिस्तान तो इतना सा रह जाता है ना। तो इन 9 लोगों ने अनपढ़ और न तजर्बाकार जलालुद्दीन अकबर को मुगल आजम बनाया। सो मेरे नजदीक, मैं कुल्लियतन गलत हो सकता हूं, मुकम्मल तौर पे गलत हो सकता हूं, कि मर्दम शनासी, ये मैंने कहा ना, जैसे मैंने पहले कहा, ये कॉकटेल है, ये मिक्सचर है, ये हलीम तैयार हुआ है, ये तब्दीली का हलीम है, यूं समझ लें। हसन निसार साहब, माफियाज की बात होती है कि जी माफियाज हैं मुल्क में जो चीज़ों को चलने नहीं दे रहे। इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने ये बात कही, बल्कि हत्ता कि तो किसी मौके पर मीडिया को भी उसमें ही शामिल कर दिया। फिर ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई, माफिया था कि जिसकी वजह से वो सारा ऑपरेट कर रहा था, वो रिपोर्ट भी सामने आ गई। फिर इस तरह के दीगर और मामलात हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। तो माफियाज के साथ हुकूमत डील क्यों नहीं कर पा रही है? और अभी ये पेट्रोल एकदम दोबारा फिर जब महंगा हुआ है, जो कि हर महीने की पहली तारीख को अमूमन होता है, इस दफा पहले हो गया, तो उस पर लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का कहने का मकसद ही ये था कि मैं उनको सीधा कर दूंगा, कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊंगा, और पेट्रोल महंगा कर दिया। क्या आपने वजह पूछी है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही? भी गवर्नमेंट होगी तो कर पाएगी, और इस मुल्क में इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 2 चीजें बड़ी हैं। आबादी, आगे फिर उसने अंडे बच्चे दिए, गुर्बत, जहालत, ये वो वगैरह, ये उसकी औलाद है। आबादी बड़ी है और माफियाज बड़े हैं, और लैक ऑफ गवर्नेंस। बिकॉज गवर्नेंस क्या है इस मुल्क में? तो गवर्नमेंट्स वो रही हैं जो खुद माफियाज थी। यानी ये जो कमाई है आपकी, जो आज लोग भुगत रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं इस पे तबसरा कर रहा हूं, ये आपकी कोई 2, 4, 10, 15, 20 साल की कमाई तो है नहीं। ये आपकी उम्र भर की कमाई है भाई। यही कुछ आपने कमाया है। 22 करोड़ मेरा ख्याल है अब कम से कम 26, 27, 28 के करीब होगा। बंदा बंदे को पहले खाना शुरू हो गया है। किसी के वहमो गुमान में भी कभी किसी की जबान से मैंने ये सुना ही नहीं है कि ये भी इस मुल्क का कोई इशू है। गुर्बत है जी, इक्तिसादियात खराब है, अखलाकियात बर्बाद है, किसी को परवाह नहीं। जो आता है उसके दिमाग में 2-4 कीड़े होते हैं, वो उधर शुरू हो जाता है। वो पता नहीं क्या कर, पता नहीं उतारो तो मुल्क संवारो। उसको सड़कें बनाने का जुनून था, उसकी भी वजह थी, एक डैम बनाने पे भी लग जानते, मैं भी जानता हूं। हाँ, तो भाई ये इस तरह की है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी के पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है नहीं। और भाई मेरे मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूं, इस मुल्क में अगर 15 साल, कम से कम 15 कह रहा हूं, का रोड मैप नहीं आता, और वो रोड मैप लोगों के डीएनए में नहीं घुसाया जाता, और उसको पूरे जबर के साथ नाफिज नहीं किया जाता, इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, साथ साथ रिवाइज करते रहें। और एक बात और मैं आपको याद रख लूं, जब जबर जो है उसको गलत मानों में इस्तेमाल किया जाता है। जबर का मतलब कोई जुल्म और तशद्दुद नहीं है। जबर निकला है जबीरा से। किसी बाजू टूट गया, उसको सीधा करने के बाद जो इर्द गिर्द जो लकड़ियां लगाई जाती हैं उनको जबीरा कहते हैं।
सो जबर कोई नेगेटिव बात नहीं है जी मैं कर रहा, पूरी कुव्वत से पूरी रिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसे इम्पोज किया जाए, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन तक को एड्रेस किया जाए। ये अंधों वाली बात है, ये हवाई काम है। इक्तसादियात बेहतर करेंगे, और मैं कैरेक्टरलेस आदमी हूं, मेरे से इक्तसादियात आपने कैसे बेहतर करवानी है? मैं कदम कदम पे झूठ बोलता हूं, मैं मिलावट करता हूं, मैं कम तोलता हूं, मेरे बाट ठीक नहीं है। जाएं किसी सड़क पे निकलें, पर इमरान वो खान जिसको साहब तो बटे नहीं सच्चे कहते तकड़ियों में जो इस्तेमाल हो, जाके देखें जी। हैं। इमरान खान साहब तो सच्चे हैं। अच्छा जी, मैं झूठा हूं? नहीं, वजीर आजम इमरान खान सच्चा हैं। होना इट्स नॉट इनफ जी, नहीं तो इट्स नॉट इनफ ना भाई। लेकिन ये हसन निसार साहब, ये 15 मेन साल का इंग्री- रोड मैप तो नहीं, ये सुने, फौज सुने, कर सकती एक- है। यार ये मुझे नहीं पता कौन करेगा या नहीं क्योंकि ये करेगा, तो इसका मैंने नहीं ठेका लिया। 5-5 साल की तो 3 हुकूमतें, हर हुकूमत आती है अपनी पॉलिसी यार, ले आती है। मुझे- पिछली पॉलिसी कहते हैं जी गलत थी। देखो यार, मैं बात सुनो, आपको देखें, मैं इस पर भी राय दूंगा। आपने मुझे कंसल्टेंट रखा हुआ है, रजाकाराना तौर पे एक टिप मैं आपको दे रहा हूं, रखनी है रखो, नहीं रखनी ना रखो। ये कंटिन्यूटी जरूरी है, 15 साल का रोड मैप जरूरी है। लोगों के डीएनए में उतारो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो कि हम ऐसे स्विच ऑन करेंगे तो रोशनी रोशनी हो जाएगी और खुशहाली खुशहाली आएगी। ये नहीं होना। ये कुदरत के बुनियादी कवानीन के खिलाफ है ये अप्रोच। हसन निसार साहब, गुफ्तगू को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमें एक मुख्तसर वक्फा लेना है, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो मजीद गुफ्तगू होगी हसन निसार साहब से। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि ये कौम जाहिल है, तो क्या वो ठीक कहा था? मैं यास्मीन राशिद को इस बात पे ट्रिब्यूट पेश कर चुका हूं। मैंने तो यहां तक कहा है कि ये इस ऐसी बात करने की जरूरत तो यहां मर्द कोई ना करे। गाली भले उसने या बुरा भला जो भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करे, लेकिन मुझे पता है ठीक कह रही है, तो मैं क्या करूं? मेरा दुश्मन भी अगर कोई बात दुरुस्त कर रहा है तो मैं पागल हूं? मैं उसे कंटेस्ट कैसे करूं, किस बुनियाद पे करूं? एक रैशनल, एक लॉजिकल आदमी, एक दलील से के साथ सोचने वाला, दलील से बात करने वाला आदमी इसको कैसे कंटेस्ट करेगा, मुझे बताएं। और जिन्हें आज तक ट्रैफिक सिग्नल की समझ नहीं आई, जिन्हें आज तक सड़क अबूर करने का सलीका नहीं आया, जो वन वे को वायलेट कर देते हैं, जो सरेआम जिस मुल्क में मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से तेल बनता है, केमिकल से दूध तैयार होता है, तो ये क्या है? इसका एक पहलू है कि ये बददेहंती है, बदकिरदारी है। दूसरा पहलू ये है कि ये जहालत है। मैं अगर केमिकल से दूध बना रहा हूं तो मैं अपनी नस्लें बर्बाद कर रहा हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रही बात। बेबरकती है जब रमजानुल मुबारक कह के एक महीने को मैं उसके अंदर लोगों को एक्सप्लॉइट करता हूं, उनकी खालें उतारता हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कुदरत का जो एक निजाम है, एक मकाफात अमल है, वो नहीं हो सकता। दो तरह के कल्चर्स है ना जी। एक में कहते हैं गिव वे, वो इशारे कर रहे होते हैं कि जी आप गुजर जाओ पहले, वो इशारा कर रहा होता है आप गुजर जाओ पहले। एक होता है स्नैच वे। ये स्नैच वे वाली सोसाइटी है। वो जो मैं कहता हूं कि इक्तिसादियात को यार छोड़ो, बाद में कर लेना। मंगोलों की क्या इक्तिसादियात थी जी? इब्तदाई जो मुसलमान थे उनकी इक्तिसादियात क्या थी? इक्तिसादियात कदमों में लेट जाया करती है। ये जराइम पेशा लोगों की सरजमीन अमेरिका, इनकी क्या इक्तिसादियात थी? हसन निसार साहब, काउबॉयज, आपका तो पता नहीं, लेकिन इमरान खान साहब बॉस्टन टी पार्टी और ये और वो जी। इमरान खान साहब आपकी राय को बड़ी अहमियत जी। देते रहे हैं, और आपसे लाहौर कई मरतबा होता था कि लाहौर आते थे तो आपसे खास तौर पे जरूर मिलते थे और आपसे डिस्कशन वगैरह भी होती थी। खान साहब को क्या सजेस्ट करेंगे, इस भंवर में से कैसे निकलें वो? नहीं, वो लास्ट टाइम भी मुझे पहले शहबाज गिल साहब का फोन आया, फिर प्रोटोकॉल वालों का कि मिलना चाह रहे हैं। मेरी आंख की हुई थी सर्जरी, तो मैंने माजरत कर ली।
सजेस्ट क्या करना है? सजेस्ट पहली बात तो यह है कि मैं अभी मशवरे बांटने में, अब आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं तो बच्चा भी बालिग हो जाए, मैं तो उसको भी अभी मशवरा नहीं देता। अगर किसी का दिल करता है, को बंदा को पूछता है, तो आप अपनी अकल समझ के मुताबिक, मेरे से तो मेरा राइवल या दुश्मन भी अगर मशवरा मांगे, और अगर मेरी समझ में कोई बात आ रही है, वो जरूरी नहीं है ठीक हो, मैं दयानतदारी से उसको दूंगा। ये एक अमानत होती है, इंसानों के दरमियान एक ग्रेस, एक खूबसूरती का तकाजा है। मुझसे को राहगीर भी अगर मांगेगा मशवरा, रास्ता ही पूछ लेगा, वो भी एक मशवरा होता है ना जी। कि नहीं बेटा आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप वापस चले जाओ फलानी लेन से, फिर मुड़ के फिर यूं चले जाना, ये भी तो मशवरा है, रास्ता बताना भी। तो ये दयानतदारी का एक डिसेंसी है, ये वाटर है, एक मुहज्जब होने का, एक इंसानी रिश्तों के कुछ तकाजे होते हैं, उनमें से है। पूछेगा जरूर देंगे। तो हसन निसार साहब, ये हुकूमत चलती हुई आपको नजर आ रही है, 5 साल पूरे करेगी? यार मुझे आपके सवाल की समझ इसलिए नहीं आ रही कि चलती नजर आ रही है, क्या ये चल रही है? मुझे आज ही किसी ने पूछा कि ये जो रिपोर्ट आई है कि जी आपके पायलट्स के पास वो क्या कहते हैं, जाली डिग्री, लाइसेंसेस ही जाली हैं, और तो ये रिपोर्ट आ गई है, तो PIA की साख को नुकसान पहुंचेगा। तो मैंने कहा यार साख है कहां? तो आप कह रहे हैं चलती नजर आ रही है। भाई पहले चल रही है जो चलती नजर आएगी, पहले जैसी चल रही है सामने है ना, ऐसे ही चलेगी। ये कौन सा मुआवजा हो जाएगा, कौन सा इंजेक्शन ऐसा इजाद हुआ है जो हुकूमतों को लगाया जाए और उनकी स्पीड या उनकी सम तब्दील हो जाए? ऐसा ही होगा। आप क्या हसन निसार साहब इस राय से इत्तेफाक करते हैं? एक आम आदमी की राय है, जो कुछ लोगों से बात हुई जो बड़े डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं PTI के, और उनसे पूछा गया कि जी आपने देखा है कि जो मामला चल रहे हैं, खासतौर पे पेट्रोल अचानक जो 25 रुपये 58 पैसे महंगा हुआ है, तो आप अभी भी सपोर्ट करेंगे? तो वो ये कहते हैं आप ये बता दें कि हमारे पास इमरान खान साहब से बेहतर ऑप्शन क्या है, कोई एक बेहतर बता दें तो हम कहेंगे जी ठीक है, वो हम उनकी तरफ चल पड़ते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आप भी क्या यही समझते हैं कि इमरान खान साहब से बेहतर अभी आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, कोई ऑल्टरनेट नहीं है? यार ये बात सुने, ये बस अपनी अपनी अकल समझ फहम, किस बंदे में कितनी डेप्थ है, वो जाहिर है उसने अपनी अकल के मुताबिक बात करनी होती है। अब घिसा पिटा मुहावरा कि ये दुनिया भर के कब्रिस्तान नागुज़ीर लोगों से भरे हुए होते हैं। बच्चे कम सनी में यतीम हो जाते हैं, लेकिन पल बढ़ के जवान होते हैं और उनमें से नामवर भी निकल आते हैं, अहले सरवत में भी शामिल हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? अजीबोगरीब बात है ये। ऑप्शन कोई नहीं है। एक कुदरत का निजाम इस तरह नहीं चलता। ऑप्शन कोई नहीं है, फिर क्या करो, करे को जाओ, ऐसा नहीं होता। देखो, पैगंबरों से ज्यादा बरगजीदा किसने होना है? दुनिया चल रही थी, दुनिया चल रही है, दुनिया जब तक चलना है चलती रहेगी। औलिया के बगैर, सूफिया के बगैर, कल तक साइंस इन मानों में या टेक्नोलॉजी इन मानों में, आज के मानों में मौजूद नहीं थी। दुनिया चल रही थी, अब भी चल रही है, चलती रहेगी। इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन और इस तरह के लोग थे, अमेरिका चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा है, यानी वहां का गोरा एडिशन समझ लें आप नरेंद्र मोदी का, तो चल रहा है। कल ये नहीं होगा, फिर भी चलता रहेगा। ये ऑप्शन नहीं है। आई डोंट नो, मुमकिन है यही ठीक कहते हो, मुझे नहीं पता। मैं इस तरह नहीं सोचता। तो बेहतर ऑल्टरनेट कौन है? तो इज्तिमाई खुदकुशी कर, नहीं आप इज्तिमाई खुदकुशी कर लें ना, फिर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। अगर हम 24-26 करोड़, हमारा ऑप्शन ही कोई नहीं, और क्या मनसब है यार? आप गौर करो जरा, जिस मनसब पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसा आदमी 3 बार बराजमान रह चुका है, उसकी क्या औकात है? उस मनसब की क्या हैसियत है? आप बताएं मुझे। तब भी चल रहा था। आसफ जरदारी साहब आ गए, तब भी चल रहा था। यूसुफ रजा गिलानी, तब भी चल रहा था। वो क्या थे, एक बैंकर साहब आए थे, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज साहब,
शौकत भाई बैंकर आ गए, फ्यूडल आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, गंड कप आ गए, मतलब जो भी आ गया वो चलता है। हसन निसार साहब, कदा गिलामी के लिए माजरत, एक हमें ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद हम लौट के आएंगे तो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डू यू एग्री कि एडवाइजर्स का मसला है, रॉन्ग एडवाइजर्स आर सिटिंग राइट एंड लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? एडवाइजर्स की बात कर रहे हो, ये एक ट्रेडिशन है पुरानी दरबारों की। द किंग इज ऑलवेज राइट। आपने भेजा कोई एडवाइजर कि मैंने भेजा है? वो एडवाइजर क्या कुर्रा करके निकाले हैं? कोई टॉस किया है? कोई लॉटरी सिस्टम है कि जी 50 नाम डाल दो, पर्चियां डालो, जड़ियां पहले 10 निकलन की उन्होंने एडवाइजर ला दो? ऐसा हुआ कुछ? वो किसका इंतखाब है? आपका है या मेरा है? जिनका है वो तो मुतमईन है। इमरान खान साहब तो कहते हैं आप ट्रंप को देख लें, उनकी गवर्नमेंट में भी एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर्स पे चलती है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप इमरान खान साहब को कोट कर रहे हैं, तो जो बात उन्होंने की है कि 6 महीने में कुछ कर लो वरना, ये किसने कहा है? ये भी इमरान खान साहब ने कहा। ये आपने कहा है, मैंने कहा है? हाँ, तो फिर खान साहब की ताजा तरीन बात पे गौर फरमाए ना, इस पे गौर करें। ये इन्हीं एडवाइजर्स की मौजूदगी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है या एडवाइस किया है या सजेस्ट किया है अपने लोगों को कि भाई 6 महीने हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एडवाइजर सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, कोई भी है, काम सही कर रहा हो तो? नहीं भाई, जो इलेक्टेड हैं उन्होंने भी क्या क्या गोल नहीं खिलाए। वो बैठे, कोई हेवन फील्ड में बैठा है, इसकी टीटियां नहीं गिनी जा रही। छोड़े आप, इलेक्टेड क्या ढोंग है? मैं बात सुने, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बैलेट बॉक्स इस मुल्क का अवाम के लिए अवाम का इज्तमाई कब्र है, जिसे बैलेट बॉक्स कहते हैं। ग्लैमराइज करते हैं अभी मुंह उठा के, पता होता कुछ नहीं, एक फैशन के तौर पे है, बट ठीक है। खास तरह के सती लोग हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अभी क्या जमहूरियत? जमहूर तो उसमें है नहीं। औरतों की आपने और खुसूसी नशिस्तें आपने ईजाद की, उसमें औरत नहीं है, बेगमात होती हैं। सर, खवातीन खिलाफ हो जाएंगी आपके इस मुल्क की होती जाए ना। मैं पुठा सा जवाब देने लगा था, चलो छोड़ो, वो हो जाए खिलाफ। भाई, इस मुल्क की आम औरत जो है वो कपास चुनती है, वो सिंध में खौफनाक गर्मी में फालसा चुनती है और उसको उजरत मिलती है, कैश में नहीं, फालसे की होती हैं वो, बहुत लंबी लंबी स्टिक्स, वो उसको दे देते हैं कि इसकी टोकरियां बना के बेच के तो पैसे ले लें। ये है औरत। तो हसन निसार साहब, आपकी राय से तो अब तक मैं यही अखज़ कर सका हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप उसको बेहतर जरा बता सकते हैं कि एक तो ये कि जो जमहूरियत है जिसकी हम बात करते हैं, या कुछ भी नहीं है, ये जो इंतखाब होता है बैलेट बॉक्स के जरिए, जी वोट लेकर हम आए हैं, ये भी सब ड्रामा है, इससे भी कुछ हासिल वसूल नहीं है। और जो एडवाइज़र्स हैं वो भी अगर सही काम कर रहे हैं और अगर उनको बिठाया गया है एक मकसद के लिए और अगर वो काम सही से कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वोट से इंतखाब उनका हुआ या नहीं हुआ। तो आखिर में जो भी आपने टेक्नोक्रेट्स की बात की और फिर आपने वो 15 साल के रोड मैप की भी बात की, तो फिर क्या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाकर एक रोड मैप दिया जाए, एक पॉलिसी हो, उस पर अमल दरामद हो और वो 15 साल तक उसको लेकर चलें और उसको मुकम्मल करें? मेरी गुजारिश सुने, देखें, मुझे एक अच्छा बावर्ची चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि उसने स्विट्जरलैंड से हॉस्पिटैलिटी में कोई कोर्सेज किए हों या वो बड़ा क्वालिफाइड और वो शेफ है, नहीं। अगर वो अच्छा खाना बना रहा है तो ठीक है भाई। अब इलेक्टेड है, नॉन इलेक्टेड, और जमहूरियत ये है नहीं, ये शैम डेमोक्रेसी है, ये उसकी पैरोडी है। और इंग्लैंड में जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भाई, इस तरह नहीं आई। आप तो देखो अपनी जिंदगी मौत से खेलते हो, आपको तो पता ही नहीं है, गवर्नमेंट चीख नहीं रही कि लोग समझ ही नहीं रहे। अच्छा, जिनको अपनी जिंदगी मौत में कब की तमीज नहीं है, आप मुझे बताएं, पढ़े लिखे लोग, एक काम प्रैक्टिस हो रही है, आप चेक कर लो,
جو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ بہمی ماری جا رہا ہے یا ٹھیک. گاڑیوں میں وہ کوئی ڈیوائس ہے رکھی ہوئی کوئی ٹوٹے سے کہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنی پڑے, چونکہ اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے تو گاڑی آپ کو گالیاں دیتی ہے, چلو وارننگ دیتی ہے انسان دا بچہ بن. گاڑی نکالتی ہے نا وہ ٹوں ٹوں کی آوازیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتی ہیں, وہ شٹ اپ کال ہوتی ہے. اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی چینی پرزا سا ہے وہ اڑس لیتے ہیں بیچ میں. یہ قوم ہے, اس سے کہہ رہے ہو ووٹ دو اور پھر ان کے ووٹ کی عزت ہو. اور جن کو اپنی زندگی موت کے درمیان فرق کی تمیز نہیں ہے وہ بندہ الیکٹ کریں گے. آپ کے سارے اس پروسیس کے پیچھے پتا کیا ایک سمندر ہوتا ہے روغنی نانوں کا, بریانی کی پلیٹوں کا, جس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے. بھائی آپ زہر کی بوتل پہ آب زمزم کا لیبل لگا دو گے تو مرضی ہے آپ کی. بھائی بڑا بڑا گند بلا اس ملک میں اس منڈی میں ملتا ہے, یہاں تو کھوتے گدے بکرے کر کے بیچ دیے جاتے ہیں. وہی حال آپ کی ڈیموکریسی کا ہے. تو حسن نثار صاحب پھر یہ کھوکھلے نعرے ہیں جس کا بھی آپ نے کہا ووٹ کو عزت دو, روٹی کپڑا مکان, صاف چلی شفاف چلی. بھائی آپ بات سنیں نا, آپ نہیں, آپ دیکھو, میں نہیں کہہ رہا کچھ بھی, میں نے تو ایک تبصرہ کیا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہو گئی بات, نہیں تو آپ موج کریں. یہ مجھے آج ہی کسی نے پوچھا ان another پروگرام کہ جی وہ ان کے لائسنس جعلی نکلے, تو میں نے کہا اس ملک میں مجھے بتاؤ اصلی کیا ہے. جمہوریت سے لے کے دودھ تک, بیسن سے لے کے غریب آدمی کی چائے کی پتی تک, یہ جو میں کہتا ہوں اخلاقیات تباہ, یہ اقتصادیات کے پیچھے, چونکہ عقلیں ہی اتنی ہیں. بھوک تو ڈنگر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اس سے آگے دیکھنے کے لیے میدا نہیں دماغ چاہیے. اقتصادیات تو کیا اقتصادیات, جہاں ورک ایتھکس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. بھائی میرے, آپ اندازہ لگائیں کیا کمال ہے. آپ کے پائلٹس, آپ کو پتا ہے کتنی سواریاں ہوتی ہیں ایئر بس میں نے کیلکولیٹ کر کے کوئی 50,000 انسان برباد ہو جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, ایک ایئر بس کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے. چونکہ ایک بندہ نہیں مرتا, خاندان, ایک پورا گھرانہ مر جاتا ہے. اس کے ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, کو بہن بھائی ہیں, پتہ نہیں وہ کن کن کی کفالت کر رہا ہے بیچارہ, کن کن کا وہ آسرا ہے, کن کن کی وہ نفسیاتی سپورٹ ہے, کن کن کی وہ جذباتی سپورٹ ہے. مالی معاملہ نہیں, اقتصادیات ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو مار دیتے ہو آپ, لائسنسز آپ ان کو مل جاتے ہیں. وکلاء کی ایک فوج ہے یہاں لگی پھر رہی ہے, وکیلوں نے مجھے بتایا, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. یہ ملک 72-73 سال سے اللہ کے ہی آسرے پہ ہیں. ٹھیک حسن نثار صاحب, لیکن یاد رکھنا جی, اللہ پاک کے فیصلے بہت, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. بغداد کے ساتھ کیا ہوا, بغداد اپنے وقت کا نیو یارک کا بھی باپ تھا. ڈھاکہ کے ساتھ کیا ہوا, سمرقند کے ساتھ کیا ہوا. ڈریں اور غور کریں, 15-20 سال پہ مشتمل کسی روڈ میپ پہ لمبا کھاتا ہے, اور شارٹ کٹ جتنے ڈھونڈو گے آپ کا پینڈا اتنا ہی لمبا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب, وی ہیڈ اے ویری گڈ ڈسکشن. اور یہ 15 سال کا جو روڈ میپ, جو آپ کی ساری ڈسکشن کا نچوڑ تھا کہ 15 سال کا روڈ میپ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بالکل کہنا درست بھی ہے کہ کسی بھی چیز کو بنا کر, اس کی پالیسی بنا کر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یقیناً وقت چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پالیسی بنے, ایک فیصلہ ہو اور پھر اس پر عمل درآمد ہو ہی رہا ہو کہ نئے فیصلے سامنے آ جائیں, نئی حکومت سامنے آ جائے, اور جو پچھلی پالیسیز تھیں, جو پچھلے فیصلے تھے وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں, اور جو پروجیکٹ ہے اس پر جو پہلے لگے تھے وہ بھی ضائع جائیں. اور اس کی ایک مثال ہمیں یہ اورنج ٹرین کی بھی ملتی ہے کہ جو اورنج ٹرین پچھلی حکومت کا یہ
प्रोजेक्ट था, इस हुकूमत में अब तक वो ऑपरेशनल भी नहीं हो सका है, उस पर पहले भी खर्च हुआ, बहुत बड़ी अमाउंट उस पर खर्च हो चुकी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट ठप पड़ा हुआ है। अब उसका कुछ ना कुछ तो करना है, तो एक रोड मैप होना चाहिए और फिर एक पॉलिसी मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसपे फिर अमल भी हो, और वो जब तक वो रोड मैप है, जब तक कि वो पॉलिसी पर अमल होना है, जिस तरह एक एग्रीमेंट होता है जी 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो वो 15 साल का जो एग्रीमेंट है वो हो और उस पर फिर अमल भी हो। इसके साथ ही जी आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है। आज के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हसन निसार साहब से हमारी खुसूसी गुफ्तगू हुई। कल इंशाल्लाह की खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।